Hello dear students, today we are going to solve the question paper of logic BA Honours Philosophy. I am Stanzen and I am here to help you solve the paper. So in this we'll be only focusing on the practical questions and not on the theoretical questions. So यहाँ पे हम लोग theoretical questions solve नहीं करेंगे, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो जो आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, राइट. सो यहाँ पे आपका सेंटेंस एंड प्रपोजिशन में डिफरेंशिएट करना, इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ट्रुथ वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिड्यूस द फॉलोइंग प्रपोजिशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लॉजिकल फॉर्म कौन सा होता है. सो यहाँ पे आपके आ जाते हैं ए, ई, आई एंड ओ प्रपोजिशन. ए प्रपोजिशन में आपका है ऑल एस एस पी, नो एस एस पी, सम एस एस पी, सम एस एस नॉट पी. सो यहाँ पे इफ़ यू सी एक चीज़ कॉमन है तो ये आपका क्वांटिफायर्स है. यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टर्म्स आ गए एंड यहाँ पे आपके कॉपुला आ गया एंड दिस इज़ द प्रेडिकेट टर्म. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो आपका क्वेश्चन है ओनली लेडीज आर अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट कोच ऑफ मेट्रो. नाउ जब भी आपका ओनली टर्म आता है दैट मीन्स ये आपका ए प्रपोजिशन में कन्वर्ट होगा. सो दिस विल बी सिंपली कन्वर्टेड इनटू ऑल. नाउ यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि allowed to travel in the first coach of the metro, ये आपका सब्जेक्ट टर्म बन जाएगा और ये आपका प्रेडिकेट टर्म. सो ऑल दोज हु आर, उसके बाद आप ये पूरा लिखोगे allowed to travel in the first coach of the metro are ladies. ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन. सो यहाँ पे आपका ओनली जब भी आता है, ये आपका ओनली जब भी आता है वो आपका ए प्रपोजिशन बन जाता है और जो आपका सब्जेक्ट टर्म है ये आपका जो सब्जेक्ट टर्म आ जाएगा और ये आपका प्रेडिकेट टर्म आ जाएगा. नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग है तो ये आपका ए प्रपोजिशन में चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल students are learners. ठीक है. Okay, now moving to the next question. All doctors are not surgeon. Now यहाँ पे don't get confused because the term all is there कि ये a preposition है. So we have to be very careful because यहाँ पे not भी है. So and again if you remember here यहाँ पे all एस पी होता है, यहाँ पे not p नहीं है. So this will be simply converted into some doctors are not surgeons. So again this is converted into O preposition. Now next one is many women are self-employed. Now again this will be converted into I preposition. So it will become some women are self-employed. Next is all line is a carnivorous, a line is a carnivorous animals. So again यहाँ पे simply आपका हो जाएगा all lines are carnivorous animals. Next है आपका pomegranate is never seedless. So again pomegranates are never seedless में आपका simply आ जाएगा no pomegranates are seedless. So in a way ये आपका e preposition में change हो रहा है. Plants are living. So again simple है all plants are living. So you simply write all plants are living. Next है sports are sometimes risky. So this will be converted into some sports are ये हट जाएगा risky आ जाएगा. So this is it. Now third question है do as directed. So इसमें we have
3 parts. सेक्शन फर्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ वर्जन एंड द सी पार्ट आपका कॉन्ट्रीपोजिशन है. So in this case, so first you need to know what is conversion, right? So conversion में आपका subject and predicate का place change हो जाता है. There is no other changes. So if you'll see the first question, all civil servants are graduates. So again basically idea क्या है, conversion का subject and predicate का place change हो जाएगा. But again in case of a preposition आपका limitation है, so it will be converted as some again graduates are and then civil servants. So again यहाँ पे you will write by limitation. So this is by limitation, that you can simply write by limitation limitation. Now moving to the next one, some stones are precious things. So again this is I preposition, so simply you can write some precious things are stones. So ये आपका आंसर हो जाएगा. Next one is some employees are not officers. So some and not है, that means it is O preposition. O preposition में conversion not valid होता है. So you can simply write conversion is not valid. Now moving to the next one is obversion. So in case of obversion क्या होता है, so जो आपका A preposition होगा that will be changed into E preposition and at the same time जो आपका predicate के साथ non लगेगा. So similarly E preposition है तो that will be converted into A preposition, I होगा तो O preposition and O preposition will be changed into I preposition and the same rule will follow. जो आपका predicate term है उसके साथ non लगेगा. So if you see the first question, that is all reptiles are vertebrates. So in this particular question again we have all, that means A preposition है, so this will be changed into no. So again reptiles as it is रहेगा and R आपका आ जाएगा, that is the copula, and non vertebrates आ जाएगा. So simple है. So the answer is no reptiles are non-vertebrate. Similarly no students are criminal. So again no है, that means आपका A preposition में change हो जाएगा. So all students are and then यहाँ पे non-criminals आ जाएगा. Okay, now moving to the next one is some flowers are not fragrant. So ये आपका हो गया O preposition. So this will be converted into I preposition. So it will become some flowers are non-fragrant. So it is non-fragrant. Okay, so यहाँ पे if you'll see in the obversion part there is no limitation as such. And moving to the next is contraposition. Now in case of contraposition, A preposition will be changed into A preposition. जो आपका E preposition होगा that will be changed into O preposition. O preposition also in O and I का not valid होगा. Now at the same time the place of the subject and predicate will be changed and दोनों के साथ आपका non लगेगा. So we'll see कैसे. So if you take the first question, that is no warriors are coward. So in this case आपका कौन सा लगेगा, E preposition लगेगा. So this will simply change into O preposition. So आपका O preposition में आ जाएगा. So O में आपका some आता है. So it will be changed into some. No, now again this part is very important, that यहाँ पे दोनों जगह आपका non लगेगा, non warrior. So if you see change हो गया place, at the same time आपका non भी use हुआ है. So next one is again O preposition. So again O preposition would be changed into O preposition. So this would be again some. यहाँ पे आपका आ जाएगा non vaccinated are not non and यहाँ पे आपका patient आ जाएगा. Similarly this one is I preposition, so this is not valid.
चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, इफ all researchers are scholarship holder is true, what would be the truth value of the following? So आपका क्वेश्चन में फर्स्ट है, some researchers are non scholarship holders. Now ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है, सो इस केस में फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको आप एज इट इज लिखोगे. सो इट्स ऑलरेडी गिवन that all researchers are scholarship holders. So this is already given in the question itself. So if you see the question, it's already given in the question. So you have to simply write given true. Now उसके बाद, as we have already done in the previous part, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? You have three options. Either आप conversion कर सकते हो, या आप obversion कर सकते हो, या फिर आप contraposition कर सकते हो. Now this will totally depend on the question which is given. So if you see the question here, the question is some researchers are non-scholarship holders. Now in case of non-scholarship holders, we know that non एक ही जगह पे आ रहा है, right? तो वो आपका obversion से आता है. So you'll simply apply obversion here. Now in case of A, अगर आपका गिवन है तो ऑब्वर्जन करोगे तो वो आपका बन जाएगा नो रिसर्चर्स आर नॉन. now instead of scholarship holders I'm just writing SH. you have to write the full form here. so उसके बाद you have to write this one is true, and what you have used? Obversion. so this is as simple as that. so you have simply used obversion here. now you have to check the place of the subject and the predicate. so if you see the question here, the question is some researchers are non-scholarship holders. so we have researchers and we have also non-scholarship holders. so इस particular case में now we'll be using the table traditional square of opposition. so ये आप रफ में कर सकते हो, A, E, I and O. now we have the value of E preposition and we have to find the value of I preposition. so E preposition है, that is no researchers are non-scholarship holders, इसका value आपके पास already true है. now we have to find the value of I preposition because question में आपका given है some researchers are non-scholarship होल्डर्स, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है. सो यहाँ पे आप देखते हो सम रिसर्चर्स आर नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स. सो अगर आपका ई प्रपोजिशन ट्रू है, सो आपका जो आई प्रपोजिशन है दैट विल बिकम फॉल्स. सो यहाँ पे यू हैव टू राइट फॉल्स, एंड देन आपने यहाँ पे क्या यूज किया? यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. So you simply have to write this and you have got the final value of this. ये आपका value false आ रहा है. Similarly you have to solve the other question. Now if you will see the second question, यहाँ पे आपका non scholarship holders and non researchers है. So इस particular में आप क्या यूज करोगे? कॉन्ट्रपोजिशन यूज करोगे. वाई कॉन्ट्रपोजिशन? बिकॉज अगर आपने रूल्स याद है तो कॉन्ट्रपोजिशन इज द ओनली वे जिसमें आपका नॉन दो बार आता है. सो अगेन सिमिलरली यहाँ पे अगेन आपको क्या यूज करना है? ऑब्वर्जन यूज करना है, एंड यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रपोजिशन. नाउ इट इज नॉट जस्ट वन कॉन्ट्रपोजिशन, उसके बाद यू हैव टू चेक इट ऑल्सो कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्लेस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस ऑन द अदर क्वेश्चन ऑल्सो. सो अगेन इफ यू टेक दी क्वेश्चन नंबर, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग. सो ऑल नॉन स्कॉलरशिप. सो अगेन फर्स्ट आपको क्या लिखना है? ऑल, आई एम जस्ट राइटिंग रिसर्चर्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स. आई एम जस्ट राइटिंग रिसर्चर्स के लिए आर एंड स्कॉलरशिप होल्डर के लिए SH, but in exams you have to write the full form. So in this particular case what we have seen here is this part is already given true, so you have to simply write given true. And then now if you see the question number 4 here, so again यहाँ पे non scholarship holders and non researchers आपका given है. so again A proposition का contraposition अगर आप करते हो, so ये आ जाएगा all
non-scholarship holders are non-researcher. So again, this is true and you have used contraposition here. So again, if you'll check with the question, so the question is also all non-scholarship holders are non-researchers. So simply you can write the value, therefore this particular value is true. Now यहाँ पे if you'll see carefully, you don't have to use the traditional square of opposition here. I hope it is clear. Now moving to the question number 5th, write short notes. So short notes, so you can write it down. Quality to quantity में क्या difference है? Traditional square of opposition क्या है? So traditional square of opposition is this one only, which we have used earlier. So you have to write in detail. What is the distribution of time, terms, existential import क्या है? So you have to write each and everything here. Now moving to the next question. So this is the question जहाँ पे students को सबसे ज़्यादा doubts रहता है. So the question is Venn diagram. So again, the test the validity of the following syllogism by Venn diagram method. Now Venn diagram method में आपका question में given है A, E, E third figure. Now again figures क्या है? So in total हमारे पास 4 figures रहते हैं, right? So figure में आपका डिटरमाइन करता है ऑन द मिडिल टर्म. आपका फर्स्ट फिगर MP SM रहता है एंड देन SP. सो दिस इज द फर्स्ट फिगर. सेकेंड फिगर में आपका मिडिल टर्म का पोजीशन वुड बी डिफरेंट. दैट इज यहाँ पे आपका मिडिल टर्म का पोजीशन होगा SP एंड देन अगेन MP S SP. सो दिस इज योर थर्ड फिगर एंड देन लास्ट आपका फोर्थ फिगर में if you see the position P, M, S and then SP. So these are the figures. So जैसे ही आपको Venn diagram का question आता है तो आपको पहले क्या देखना है? फिगर्स देखना है. So according to the figure आपको थर्ड फिगर गिवन है. So again यहाँ पे आपका थर्ड फिगर गिवन है. So थर्ड फिगर में simply write the value M यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे and then again M and then आपका S आ जाएगा. नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहला जो आपका प्रपोजिशन है दैट इज ऑल. सो ए प्रपोजिशन में आप ऑल यूज करते हो. ऑल M इज P. नेक्स्ट में नो M इज S एंड आपका कंक्लूजन जो पार्ट है दैट इज ई प्रपोजिशन. तो आपका सिंपली नो S इज P आ जाएगा. नाउ अगेन व्हेन वी ड्रॉ द वेन डायग्राम तो यहाँ पे आपका P है, S है, M है. सो इसी के अकॉर्डिंग 3 सर्कल्स बनेगा. सो S के लिए एक सर्कल, P के लिए एक सर्कल एंड देन M के लिए एक सर्कल. सो यू कैन सिंपली राइट S, P एंड M ऑल्सो. नाउ यहाँ पे एस वी कैन सी दोनों आपका यूनिवर्सल है. सो आप किसी को भी पहले कर सकते हो. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज जो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन यूनिवर्सल है उसको पहले करना है फॉलोड बाय द पर्टिकुलर. सो लेट्स टेक द नो एम इज एस वाला ले लेते हैं. सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ इट. सो नाउ यहाँ पे व्हाट यू हैव टू सी एम और एस का रिलेशन देखना है. सो नो एम इज एस आपका गिवन है. सो आपका ये वाला पार्ट पूरा शेड होगा. एंड नेक्स्ट वन इज ऑल एम इज पी. नाउ अगेन यू हैव टू चेक एम एंड पी के बीच में रिलेशन चेक करना है. सो अगेन ऑल एम इज पी में आपका जो एम वाला पार्ट है वो आपका पूरा शेड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी द premise का आपका Venn diagram. So I'm just writing premise का Venn diagram. Please write the full form. And now let's draw the conclusion part. So again we have S, we have P, and then we have M. Now in this case we have to check no S is P only. So ये वाला आपका पार्ट शेड हो जाएगा बिकॉज एस और पी के रिलेशन को हमें देखना है. नाउ दिस इज फॉर द कंक्लूजन एंड दिस इज फॉर द premise. नाउ वी हैव टू चेक द premise एंड कंक्लूजन का वेन डायग्राम चेक करना है. सो वी फाइंड दैट दिस पार्ट इज बीइंग शेडेड. ये वाला पार्ट हमारा शेडेड है in case of the conclusion, but it is not shaded in case of the premise. So this will be simply not
वैलिड या फिर आप इनवैलिड लिख सकते हो. सो दिस जो आपका फर्स्ट गिवन है दैट इज AEE, थर्ड फिगर आपका इनवैलिड है. तो एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले आपको ये लिखना होगा. इसके लिए यू नीड टू नो द फिगर्स. उसके बाद ए का ऑल आता है, ई के लिए नो आता है, अगेन ई के लिए नो आता है. सिमिलरली आपको लिखना होगा. उसके बाद आपको प्रमाइस का वेन डायग्राम बनाना है. उसके बाद कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाना है. एंड उसके बाद लास्ट में कंपेयर करना है प्रमाइस और कंक्लूजन का वेन डायग्राम. सिमिलरली यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं. सो अगेन नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द फिगर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 1 यूज किया गया है. सो फिगर 1 में यू नो अगेन एम एंड देन एम का पोजीशन एंड देन यहाँ पे पी, यहाँ पे आपका एस और यहाँ पे एस और पी आ जाता है. सो अगेन फर्स्ट आपका ऑल है तो ऑल एस इज एम हो जाएगा. आई है मीन सम, एस इज एम आ जाएगा. और ओ है तो सम नॉट आ जाएगा. सम एस इज नॉट पी आ जाएगा आपका. ओके फाइन विद दिस वन. अब चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं. तो 1 2 एंड 3 आपका बन गया. एस पी और एम आपका बन गया. नाउ फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि हम शेड करेंगे प्रमाइसिस को. सो इसलिए यहाँ पे आपका यूनिवर्सल पार्ट है तो यूनिवर्सल को पहले करते हैं. सो यूनिवर्सल को अगर आप पहले करते हो तो आपको चेक करना है एम का रिलेशन विथ पी. सो ये पूरा पार्ट आपका आप शेड कर दोगे, एम वाला पार्ट पूरा. नाउ नेक्स्ट है सम एस इज एम. नाउ अगेन आपको एस और एम के बीच में देखता है. सो दिस पार्ट इज ऑलरेडी शेडेड. सो यहाँ पे छोटा सा पार्ट बनता है एक्स. सो यू कैन सिंपली राइट एक्स देयर. नाउ नेक्स्ट आपका पार्ट बनता है कंक्लूजन का. सो यहाँ पे आपका एस पी और एम आपका गिवन है राइट. एंड यहाँ पे एस और पी का रिलेशन देखना है. सो एस और पी का अगर आप रिलेशन देखते हो तो आपका जो एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसीलिए आएगा बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर ये इस सर्कल में फॉल होगा या इस सर्कल में फॉल होगा, इसीलिए आप मिडल में कर देते हो. सो यहाँ पे सम एस इज नॉट पी का आपका वेन डायग्राम बन गया. नाउ अगेन यू हैव टू चेक इसका वेन डायग्राम जो प्रमाइस का है और जो कंक्लूजन का वेन डायग्राम अगेन सेम नहीं है तो इनवैलिड या फिर नॉट वैलिड आपका आ जाएगा. दैट्स इट. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका गिवन है अरेंज द फॉलोइंग सिलॉजिज्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मेंशन द मूड एंड फिगर एंड टेस्ट द वैलिडिटी बाय सिलॉजिस्टिक रूल्स एंड fallacy methods. Now जो आपका क्वेश्चन गिवन है you have to read it very carefully. So if you'll see the first question, some actors are talented people as. Now again we know that as is a premise indicator. So जो आपका ये वाला पार्ट होगा that some actors are talented people, ये आपका conclusion हो जाएगा and बाकी आपका premise हो जाएगा. Now let's see लिखने का क्या तरीका रहता है. So whenever there is any such question, be mindful कि आप पहले conclusion को लिखो. So again just keep some space for the premise and just write the conclusion. So आपका conclusion यहाँ पे given है some actor are, now I'm just writing talented people के लिए TP लिख रही हूँ, ठीक है. And again you have to write the full form. Now again some actors are talented people, so we have talented people. Now ये आपका predicate term है तो again we have to check predicate term किस में आता है. So again talented people is here. So again in this case what you will do, ये आपका major premise हो जाएगा. So आप लिखोगे some artists are talented people. So again talented people आपका आ गया. So जो बच गया वो आपका minor premise हो जाएगा. So simply you will write all actors are artists. So यहाँ पे आपका मिल गया है, फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है. Now what you have to check, now you have to simply check कि आपका मूड एंड फिगर क्या है.
सो मूड एंड फिगर के लिए सो अगेन जो आपका फर्स्ट प्रमाइस है वो आपका कौन सा प्रमाइस है, आई है, आई प्रपोजिशन. सेकेंड प्रमाइस आपका ए प्रपोजिशन. एंड इफ यू विल सी द थर्ड वन जो आपका मेन कंक्लूजन है दैट इज ऑल्सो आई. तो ये आपका मूड है. सो फर्स्ट आपको ये काम करना है. सेकेंड में यू हैव टू फाइंड द मूड एंड फिगर. तो ये आपका मूड हो गया, आई ए आई आपका मूड हो गया. एंड देन फिगर के लिए यू हैव टू चेक द मिडिल टर्म. सो अगेन यहाँ पे दोनों टर्म आर्टिस्ट दोनों में है, दैट मीन्स इट इज द मिडिल टर्म. एंड देन अगेन इफ यू विल चेक कि यहाँ पे मिडिल टर्म का पोजीशन ऐसा किस में रहता है, तो अगेन दैट इज in the first figure. So you simply have to write AIA first figure. So this is required in the question. So again into standard form में लिखना है. Standard form means आपका major premise आएगा and then minor premise आएगा followed by the conclusion. So again this is very important कि पहले आपका major premise फिर minor and then आपका कंक्लूजन आए. उसके बाद पूछा है मूड्स एंड फिगर. सो आपने मूड और फिगर आपने शो कर दिया एंड टेस्ट द वैलिडिटी. नाउ अगेन यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द वैलिडिटी पार्ट. सो उसके लिए यू हैव टोटल हाउ मेनी रूल्स, टोटल 6 रूल्स एंड द एसोसिएटेड फैलेसी. सो यू हैव टू चेक वन बाय वन कौन सा रूल इसमें ब्रेक हो रहा है. सो अगर कोई भी रूल जिसमें ब्रेक हो रहा है तो यू हैव टू मेंशन द एसोसिएटेड फैलेसी. सो इफ यू चेक द फर्स्ट रूल, सो अगेन आपका फर्स्ट रूल क्या है, अवॉइड 4 टर्म्स. सो अगेन इफ यू सी आर्टिस्ट आपका एक टर्म हो गया, दैट इज टैलेंटेड पीपल दूसरा हो गया, एक्टर्स हो गया. सो वी हैव 4 टर्म्स. सो यू कैन जस्ट मेंशन दी अवॉइड 4 टर्म्स आपका रूल का नाम एंड देन देयर इज नो फैलेसी. तो फैलेसी मेंशन नहीं करना है. अगेन नेक्स्ट में आपका कौन सा रूल है, सो यू हैव टू मेंशन लाइक. नेक्स्ट में आपका है द सेकेंड रूल दैट इज डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइस. सो जो आपका मिडिल टर्म है दैट इज आर्टिस्ट वो एक टर्म में एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. सो अगेन आई प्रपोजिशन में आपका दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और जो आपका ए प्रपोजिशन है उसमें आपका सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सो अगेन जो आपका रूल नंबर 2 है वो ब्रेक हो रहा है. सो यू हैव टू राइट द रूल नंबर 2. एंड जो आपका एसोसिएटेड फैलेसी है दैट इज फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म. सो ये आपको लिखना है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. तो ये आपको मेंशन करना है. सिमिलरली यू हैव टू चेक रूल नंबर 3 ऑल्सो. रूल नंबर 3 है any term distributed in the conclusion must be distributed in the premise. So again ये भी रूल आपका फॉलो नहीं होगा बिकॉज आपका आई प्रपोजिशन गिवन है एंड आई प्रपोजिशन में आपका दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अवॉइड 2 नेगेटिव प्रमाइसेस. सो अगेन 2 नेगेटिव प्रमाइसेस नहीं है तो ये भी आपका अप्लाई नहीं होता है. सो नेक्स्ट वन इज इफ आइदर ऑफ द प्रमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन में मस्ट बी नेगेटिव. सो अगेन जो आपका 5th रूल है वो भी अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि नेगेटिव टर्म्स नहीं है. एंड लास्ट जो आपका रूल है दैट इज नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रमाइसेस. सो अगेन दोनों प्रमाइसेस आपकी यूनिवर्सल है तो ये भी रूल आपका फॉल नहीं हो रहा है. सो ओनली 1 रूल आपका अप्लाई हो रहा है मतलब ब्रेक हो रहा है इन अ सेंस दैट जो आपका है डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रमाइस. सो यहाँ पे जो आपका मिडिल टर्म है दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. सो उसके एसोसिएटेड फैलेसी है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंशन validity, right? So again this is an invalid, it is invalid. So you have to mention it is invalid because यहाँ पे आपका fallacy of undistributed middle आता है. Similarly you have to solve the next question also. पहले standard form में लिखिए major premise, then minor premise and then conclusion. उसके बाद आपका मूड एंड फिगर जो भी बनता है वो लिखना है एंड जो आपका फिगर बनता है फिगर विल बी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म. एंड उसके बाद यू हैव टू मेंशन द 6 रूल्स जो मैंने अभी बताया 6 रूल्स. सो यू हैव टू मेंशन ऑल द 6 रूल्स एंड
कोई अगर फैलेसी ब्रेक होता है या कोई भी देयर इज एन एसोसिएटेड फैलेसी, सो यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल. सो जो आपका क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड है, सो उसमें भी सिमिलर होगा. सो अगेन द बेसिक वे टू चेक कि आपका प्रमाइस कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है. सो फॉर दैट यू कैन रेफर टू कंक्लूजन इंडिकेटर्स या फिर आपके प्रमाइस इंडिकेटर्स. सो दैट इज अगेन गिवन इन योर IIM कॉपी बुक. सो उसमें आप चेक कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्लियरली दिख रहा है देयरफॉर. सो अगेन देयरफॉर इज ए कंक्लूजन इंडिकेटर. सो इसके बाद जो भी आपका प्रपोजिशन आता है दैट विल बी कंक्लूजन. एंड जो भी कंक्लूजन का आपका प्रेडिकेट टर्म है वो आपका मेजर प्रमाइस में आ जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट टर्म है वो आपका माइनर प्रमाइस में आ जाएगा. दैट्स इट. Now moving to the next one is again explain the fallacy. So again you can do that. Undistributed fallacy कौन सा होता है, अभी हमने डिस्कस किया था undistributed fallacy. And then similarly illicit major, illicit minor. So again you can mention all those fallacies. Existential fallacy कौन सा होता है. So this are the again theoretical part. So this is quite easy to do. ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन थ्योरेटिकल बेस. तो ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर